ڈارلنग، یہ بڈھا ہم پر کیوں چیخ رہا ہے اور رات کو خود اس چڑیل کے ساتھ رومانس کرتا ہوگا؟ یاسان نے چوکیدار کو ناگواری سے دیکھتے فراج کے ہونٹوں پر انگلیوں سے پاؤٹ بناتے وہی انگلیاں اپنے لبوں سے لگاتے کہا، جس پر چوکیدار آسمان کی طرف دیکھ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا لاحول پڑنے لگا، مگر یاسان کی نظریں اپنے پیچھے چڑیل لفظ پر محسوس کرتے چوکیدار نے تھوک نکلا، چڑیل کہاں چڑیل اور خبیث تم ام کو بڈھا کہتا ہے، ہماری عمر ابھی 40 سال ہوتی ہے۔ چوکیدار بظاہر خود کو مضبوط رکھتے ہوئے خود کے لیے بڈھا لفظ سنتا احتجاج کر گیا، بڈھے کو بڈھا کہوں گا نا، شکیرہ تو کہنے سے رہا نا ڈارلنگ۔ زیا نے چوکیدار کو دیکھتے فراش پر نظر جمائے، اپنی بات کی تائید چاہے جسے فراش نے گردن ہلاتے تائید کی۔ بالکل جانے من، اور یہ چڑیل جو آپ کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن یہ چڑیل تو نہیں لگتی، کتنی خوبصورت ہے نا۔ فراج نے چوکیدار کے پیچھے دیکھتے جواب دیا۔ چوکیدار کے پسینے چھوٹے، تم نے میرے ہوتے اس چڑیل کو خوبصورت کہا؟ ڈارلنگ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ یاسان نے اپنا ہاتھ فراج کے سینے سے ہٹاتے منہ بنائے ادا سے کہا۔ چوکیدار اپنے پیچھے چڑیل اور آگے ان نام کے مردوں کی بغیرتی دیکھتے سمجھ نہ پایا وہ غصہ کرے یا روئے، جبکہ چوکیدار کے پسینے چھوٹتے دیکھ کے یاسان اور فراش نے اپنی ہنسی چھپائی۔ ارے میری جانیں من، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ وہ تو بس ایسی ہی تعریف کر رہا تھا، تم سے خوبصورت تھوڑی ہے نا۔ فراش نے بائک کچھ آگے کرتے یاسان کے سینے پر ہاتھ پھیرتے مسلتے ہوئے کہا۔ یاسان نے فراج کی بات اور حرکت پر اپنا کہکا مشکل سے ضبط کیا، جبکہ چوکیدار نے بغیرتوں کی بغیرتی دیکھنے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھنا ضروری سمجھا۔ آہستہ آہستہ گردن مڑے چوکیدار نے اپنے پیچھے کسی کو نہ پاتے ایک پرسکون سانس بھرتے واپس انٹر کی، صرف نام کے مردوں کو دیکھا۔ تم خبیث ہم کو ڈراتا ہے، ہم تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور ہم ڈرتا نہیں کسی چڑیل سے۔ چوکیدار دھاڑتا اپنی لمبی کندھے پہ گن ڈھونڈتے گویا ہوا، جبکہ فراج اور یاسان نے اس ڈرپوک چوکیدار کو دیکھتے ایک ساتھ دونوں نے آئی برو ریز کی، جیسے کہہ رہے ہو سیریسلی چلو پھر ہم تمہیں اب فرصت سے ڈراتے ہیں۔ چوکیدار کو اگر معلوم ہوتا یہ لوگ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے تو بیچارہ یہ نہ ڈرنے کا جھوٹ کبھی نہ بولتا۔ بیچارہ چوکیدار، آپ کے پیچھے ہے چڑیل بڈھے انکل اور آپ کو ہی دیکھ رہی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ چوکیدار نے اپنی کرسی کے قریب گن کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا جب یاسان نے چہرے پر حیرت سے ڈرایا کہا۔ یاسان کی حیرت میں ڈوبی آواز سنتے چوکیدار ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا کہیں بھی تو نہیں ہے؟ چوکیدار نے پھر سہمتے گردن موڑے کہا۔ یہ رہی نا، لمبے لمبے کالے ناگن جیسے بال کھولے کھڑی ہے کسی اپسرا کی طرح۔ فراج نے چوکیدار کے پیچھے نظریں مرکوز کیے نادیدوں کی طرح دیکھتے کہا۔ چوکیدار نے پھر تھوک نکلا، وہ اپسرا تمہیں نہیں ڈارلنگ بڈھے انکل کو دیکھ رہی، اس بڈھے انکل پسند ہے۔ دیکھو سفید لمبے لمبے دانتوں اور بکرے کے خون سے رنگے ہونٹوں پر جیسے کتے کی کلہجی جیسی زبان پھیر رہی ہے۔ یاسان نے فراج کے اپسرا کے نقشہ کھینچنے پر مصنوعی انداز میں جل بھن کر خونخوار نقشہ کھینچتے چوکیدار کی جان ہوا کی۔ ہمیں کیوں نہیں دکھ رہا چڑیل؟ چوکیدار نے روحانسا ہوتے پوچھا۔ فراج نے یزان کے انداز اور چوکیدار کی حالت پر کھانستے اپنا کہکا روکا، جبکہ چوکیدار فراج کے کھانسنے کی آواز پر اچھل کے فراج اور یزان کی طرف اچھلا۔ اب فراج اور یزان کی بائکس کے درمیان چوکیدار کھڑا کانپ رہا تھا۔ او اچھا اچھا، یزان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جیسے چڑیل سے چوکیدار کے سوال کا جواب پوچھتے بولا، تو چوکیدار نے سوالی نظروں سے یزان کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی کہ یہ چوکیدار ہمارا جانا ہے اور اس کا لیلا، یزان نے کہا تو چوکیدار نے خود سے یزان کو گھورا، جبکہ فراج نے دونوں ہاتھ ہیلمٹ کے اندر منہ پر رکھے اپنا کہکا پھر ضبط کیا۔ فراج کی طرف چوکیدار کی پیٹھ تھی، ماڑا ہمیں تو آواز نہیں آیا، تم ہم کو خط سمجھ رہا ہے؟ چوکیدار غصے سے بولا۔ میری جان من سے ایسے بات مت کرو بڈھے انکل، اب تمہاری چڑیل گونگی ہے تو وہ کیا کرے بیچاری؟ بیچارہ چڑیل اشاروں سے بتا رہی ہے دیکھو، خیر آپ تو سڑیل چڑیل ہی نہیں دیکھ رہی۔ فراج نے مصنوعی گھوری سے چوکیدار کو نوازتے یزان کی طرف، یزان کے چوکیدار کی ڈانڈ پر اترے ہوئے چہرے پر اپنی انگلیوں کا پاؤٹ بناتے ہونٹوں سے لگا یزان کے لبوں سے لگا۔ یہ فراج کے منانے کا طریقہ تھا، جس پر یزان نے بھی خوشی سے ان انگلیوں پر عمران ہاشمی والا مگر ساؤنڈ کے ساتھ چما دیا۔ چوکیدار نے باقاعدہ پشتوں کی دوگندیا گالی ان بغیرتوں کے پیش نظر کی۔ یہ ہم کو گالی دے رہے ہیں ڈارلنگ؟ کی یزان نے ان کی گالی سمجھتے فراج سے کہا۔ دینے دو جانے من، ان کی بولتی تو ابھی یہ چڑیل ان کے ہونٹوں پر اپنے لمبے دانتوں والے ہونٹ رکھتے بند کرے گی، لیکن ہمیں کیا، چلو چلتے ہیں، فراج نے کہتے بائک اسٹارٹ کرنا چاہی، مگر چوکیدار نے تھوک نکلتے فراج کے ہاتھ پر اپنے دونوں کپکپاتے ہاتھ رکھے۔ نہیں، ہم کو چھوڑ کر نہیں جاؤ، اس چڑیل کو بھگاؤ یہاں سے، چوکیدار نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ہم نہیں بھگائیں گے ڈارلنگ، انہوں نے ہماری بےعزتی کی، ہمیں گالی دی، اور ابھی تو کہہ رہے ہیں نہیں ڈرتے چڑیل سے۔ اب کیا ہوا؟ پٹھان کا جوش ہوا ہو گیا، اب تو آپ کو چڑیل لے کر جائے گی، اب آپ بھاگو، آپ آگے آئے کہ چڑیل آپ کے پیچھے پیچھے گانا گاتی آئے گی۔ یزان نے مزے سے فراج کو منع کرتے چوکیدار سے چہکتے ہوئے کہا، کون سا گانا جانے من؟
फराज ने हेलमेट की थोड़ी वाली जगह पर उंगली रखते हुए सोचा, एक नाले के पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और तेरे पीछे पीछे आ गई। याजान ने बकायदा हाथ हवा में फैलाते सीना हिलाते गाया। फराज का कहका जब्त करता चेहरा सुर्ख हो, जबकि चौकीदार ने गुस्से से याजान को घूरा, जिस पर याजान ने किया, लेकिन नाला क्यों? जाने मन फराज ने सोचते हुए पूछा। डार्लिंग, क्योंकि ये बुढ़े अंकल सामने नाले तक ही भाग पाएंगे और इनकी चुड़ैल लैला उन्हें पकड़ लेगी। याजान ने फिर चहकते कहा। नहीं, चुड़ैल नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि चुड़ैल का पैर उल्टा होता है। हम आगे भागेगा और उल्टा हमसे दूर भागेगा। चौकीदार ने कुछ सोचते जला देने वाली मुस्कुराहट सजाएगा, जबकि इस पठान की अकल पर यजान और फराज ने इस पठान चौकीदार को घूरा, जो दांत दिखाते उन्हें ही देख रहा था। फराज और यजान एकदम बाइक से दाएं बाएं उतरे और चलते चलते इस जगह पर पहुंचे जहां चुड़ैल के खड़े होने की पेशन गोई कर रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे से कुछ फासले पर पंजों के बल ऐसे बैठे जैसे वो गौर से चुड़ैल के पैरों को देख रहे हैं। हेलमेट अब भी हनूस सर पर था। कि तुम्हारा अम्मा लगता है, जिसके कदमों में बैठा जन्नत तलाश कर रहा है। तुम दोनों खबीस। चौकीदार इनकी हरकत को गौर से देखता, नाक सुखेड़े फिर जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए गोया हो, जबकि अजान और फराज ने चौकीदार की तरफ रुख करते फिर एकदम हवा में अपना दायां बायां हाथ बुलंद करते दूसरे हाथ को पहले हाथ के कुछ फासले से ऊपर की जानिब मोड़ा, इशारा और तरीका जाहिर कर रहा था कि वो लोग चुड़ैल के पैरों को सीधा करें। चौकीदार की आंखें हैरत से फैली। तुम्हारा लैला का पैर सीधा हो गया, अब ये चुड़ैल लैला तुम्हारा तेल निकालेगा। फराज ने खड़े होते पठानी हसन में चौकीदार की नकल उतारते कहा, तो यजान ने भी खड़े होते बाकायदा हाथ से तेल निकालने की तरफ इशारा किया। फिर दोनों ने सर को कम करते एक हाथ को सीने पर रखे तो दूसरे हाथ को फैलाए। चुड़ैल को एलिजबेथ क्वीन के खादिम की तरह इशारा किया। चौकीदार को लगा जैसे चुड़ैल इसकी तरफ कदम बढ़ा रही है। चौकीदार उल्टे पैर वहां से गिरता पड़ता भागा, और यजान और फराज को पश्तों में गालियां देने से बाज फिर भी नहीं आता। जबकि चौकीदार की हालत देखते यजान और फराज का कहकर सन्नाटों को चीरता गुजरा, और वो दोनों हंस हंस कर पेट पर हाथ रखे लोटपोट हो रहे थे। इतरा था दाद का इंतजार करती बेड ग्राउंड से टेक लगाए सो चुकी थी। दुपट्टा बेड के सिरे पर रखा था। रात के 3 बज रहे थे जब हदाद अपने रूम का दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा लॉक करके कंधे पर रखा कोट सोफे पर उछालता, ओवल कोट के बटन खोले, उसे भी सोफे की जीनत बनाया, अपनी टाई उतारते पलटा था। वार्डरोब के करीब बैग्स देखते हदाद ठटका। हदाद की नजरें बेड की तरफ उठी, जहाँ अतरत ग्राउंड से टेक लगाए सो रही थी। हदाद की सुर्ख आंखों में मजीद सुर्खी छाई। टाई को जमीन बोस करता कफ मोड़े वो इतरत के पास लंबे लंबे टक भरता। इस तक पहुंचा, इतरत की गोद में रखे हाथ की कलाई सख्ती से पकड़ते हदात ने इतरत को झटके से बेड पर सीधा किया। इतरत अचानक आफत पे नींद से बंद होती आंखें खोलती गौर से सामने वजूद को देखने की कोशिश करने लगी, मगर सामने हदात के सख्त पथरीले तासुरात देखते इतरत का गला खुश्क को आंखें पूरी खुली। हदाद इतरत की आंखें खुली देखता अब झटके से इतरत को खड़ा करते अपने रूबरू घसीटते बेड के आगे कमरे के सेंटर में फानूस के नीचे साथ ली खड़ा हुआ इतरत की गलाई अलबत्ता हदाद के हाथों की गिरफ्त में हनूस थी। हदाद, मुझे तकलीफ हो रही, प्लीज छोड़े मुझे। इतरत हदाद की अपनी कलाई पर सख्त गिरफ्त पर आंसू बहाती हुई बोली, और दूसरे हाथ की मदद से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी तकलीफ माय फुट, तुम्हें एहसास है 5 साल से किस कर्ब से गुजर रहा हूं मैं। हदाद इतरत की बात सुनते धाड़ा इतरत को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। एहतजाज करता हाथ पहलू में गिरा, आंसू भरी आंखें ख्वाब से सहमी। तुम्हें खुद से दूर क्या, सिर्फ इसलिए कि मैं तैश में तुम्हारे साथ हक रखते हुए भी कुछ गलत ना कर बैठो। इदाद हतरत इतरत की कलाई को झटका देता इतरत को मसीद खुद के करीब करता, इसकी कलाई आजाद करके, मगर दूसरे हाथ से इतरत के बालों को जकड़े इसके मुंह पर कुराया। इतरत ने ख्वाब से आंखें मींच ली। हदात ने दूसरा हाथ से इतरत की कमर को सख्त गिरफ्त में लिया। और तुम मेरे करीब खड़ी हो, और तुम फिर मेरे करीब खड़ी हो। तुम में अगर मेरा सामना करने की हिम्मत है तो इस हिम्मत के अंजाम का हौसला भी होगा। हदात ने इतरत की लरजती आरज़ू पर सजदा रेस पलकों को देखते तंज़िया मुस्कुराहट लेगा। इतरत जो ख्वाब से इसकी बातें सुन रही थी, हदात की बात का मतलब समझती फौरन आंखें वाक करके आंसुओं से लबरेज निगाहों से हदात को देखने लगी। काली आंखों में आंसू देखते फिर एक दफा इन आंखों के लिए हदात का दिल तकलीफ से धड़का, मगर दूसरे ही पल वो अपने दिल को डपट चुका था। मैं नहीं, अम्मा हुजूर ने मुझे आपके कमरे में भेजा। इत्तत ने खुश लबों पर जबान फेरते बेबसी से इस जालिम शख्स से बचने की कोशिश की, जो अब इसकी कमर पर बेबाकी से हाथ फेर रहा। तुम्हें फिर भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर अब आ गई हो तो उसका खमियाजा भी भुगतो। हदात ने कहते इतरत की शर्ट की जिप झटके से नीचे की। इतरत ने सहमते हुए हदात के सीने से शर्ट को मुट्ठियों में भीं। आखिर मेरा कसूर क्या है हदात? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर मुझसे ऐसा सलूक क्यों कर रहे? इतरत हदात के मर्दाने सख्त हाथ को अपनी बरहन नाजुक कमर पर महसूस करते बेबसी से हदात के सीने में मुंह छुपाए सिसकियां भरते गोया हुई इतरत की सिसकी और कामते वजूद को देखते हदात का हाथ एक पल रुका। हदात ने इतरत की कमर से हाथ निकाले इसकी थोड़ी को थामे, इतरत का चेहरा अपने सामने किया।
हदात के गुस्से में गर्म सांसों से इतरत को अपना चेहरा सुलगता महसूस हुआ। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम शाह मीर खानदान की बेटी हो और दाऊद खानदान की नवासी। हदाद ने कहते इतरत की थोड़ी झटकी और दूसरे पल इतरत की कलाई को पकड़े बेड के करीब पहुंचते इतरत को बेड पर धकेला। इतरत औंधे मुंह बेड पर गिरी शर्ट हदाद को सहमी निगाहों से देखने लगी, जो एक पाँव बेड पर रखे इस पर बाजू टिकाए इसकी तरफ झुका हुआ था। तुम्हारा ही कसूर है कि तुमने सिर्फ इनसे वफा निभाई, तुमने जालिम की मदद की, तुम जुल्म देखते खामोश रही। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम्हारी चुप्पी की वजह से एक बेकसूर शख्स नाकर्दा गुनाह की सजा झेल रहा है। और बताओ क्या कसूर है तुम्हारा? हदाद ने आंखें झुकते इतरत की काली सहमी हुई आंखों में ब्राउन इश्तियाल से सुर्ख होती आंखें गाड़े पूछा। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि तुमने मुझे अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने पर मजबूर कर दिया इतरत शाहमीर। हदाद ने अजीब मुस्कुराहट सजाए कहा। हदाद की आंखों में मोहब्बत के मान की टूटी कच्चियां आया थी। इसके दिल को इतरत की खामोशी ने बहुत बुरी तरह तोड़ा था। इतरत की आंखों से मोती आरजों पर बहने लगे। गले में तकलीफ इस कदर घुली कि इतरत को सांस लेने में दुश्वारी हुई। हदाद सब जानते थे, वो बार बार मेरी खामोशी का जिक्र कर रहे थे। क्या हनान भाई इन्होंने बता दिया? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। इतरत ने डूबते दिल से सोचा और खुद को ही तसल्ली दी। मैं औरत पर जुल्म करने वाला मर्द नहीं, मगर तुम खुद एक जालिम हो। तो तुम्हारा खानदान, सब, बिल्कुल अपने खानदान की तरह, सफाक औरत की तरह जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने, तुम्हारी खामोशी ने हमें कहीं का ना छोड़ा, और आज फिर तुम्हारे खानदान ने मेरी बहन को हमसे दूर कर दिया। इसकी अचानक रुखसत ही करवा दी। हदाद एकदम इतरत को पैर से पकड़ते बेड पर घसीटते अपने करीब करते इतरत के बालों को गुद्दी से जकड़ता झाड़ा। इतरत ने बेसाख्ता सिसकी ली। हदाद की धार से इतरत का वजूद कांपने लगा। बालों पर सख्त पकड़ से इतरत को सर में दर्द की टीस से महसूस हुई। इतरत अपने माजी की सोचों को झटकती हदाद की बात का मतलब समझने की कोशिश करती रही। बहन, रुखसती, एकदम इतरत के जहन में यकदम इतरत के जहन में झमाका हुआ। मुकद्दस भाभी की रुखसती अचानक इतरत अपनी सोचों में फिर एक दफा गुम हुई। इतरत की आंखों से हैरानगी देखते हदाद, जो कि इतरत के चेहरे को अपनी आग बरसाती नजरों के हंसार में लिए हुआ था, फिर अजीब से मुस्कुराहट सजा गया। हैरान क्यों हो रही है? पहली दफा थोड़ी हुआ है, तुम लोगों की तो आदत है हमसे हमारे अपनों को दूर करने की। हदाद ने इतरत के करीब झुकते कान में सरगोशी की। हदाद, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मुकद्दस भाभी की रुखसती के बारे में। इतरत ने हिम्मत करते कहा। मान लिया ये बात तुम्हें नहीं पता, मगर और तो बहुत कुछ पता है तुम्हें, है ना? हदाद ने इस्तफसार किया। मुझे सांस नहीं आ रही हदाद, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, प्लीज। इतरत ने हटते हुए लंबी लंबी सांसें भरते कहा। इतरत का सांस लेने में हलकान हो रही थी। हदाद की ब्राउन आंखों में मजीद सुर्खी छाई। और मैं अब सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ, इस कदर करता हूँ कि आज रात के बाद तुम अपने पूर पूर पर मेरी नफरत का लम्स महसूस करोगे। हदाद ने बेरहमी से कहा। इतरत को हदाद का धक्का देना चाहा। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? तुम्हारी हदूद मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म है। हदाद इतरत की हरकत पर तंज करता मुस्कुराते नरम मगर रोबदार लहजे में गोया। हदाद, प्लीज, मैं अब कभी आपके कमरे में नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दे। इतरत फिर हदाद की कैद में आती बेबसी से बोली। आंसू अब भी बह रहे थे अपने शौहर की नफरत भरे लम्स से। अच्छा, आज उसे 5 साल का हर्ज लगा था। इतरत आखिरी कोशिश करने लगी। हदाद इतरत की बात पर सुनता, सीख पा होता इसके चेहरे के करीब मजीद अपना चेहरा कर गया। हदाद की सांसें इतरत के लबों को झुलसा देने की हद तक गर्म थी। तुम इस कमरे में आ तो गई हो, मगर अब इस कमरे से राह फरार तुम्हारी मौत के बाद ही मुमकिन। और रही तुम्हें छोड़ने की बात, मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ, मगर छोड़ किसी सूरत नहीं सकता। हदाद इतरत के चेहरे पर गुराया। इतरत की आंखें फैली। वो तो भी यहाँ से जाने देने की बात कर रही थी, और हदाद वो बात इससे मुकम्मल तौर पर आज़ादी समझ रहा था, या वो सब समझती हुए उसे अपने लफ्जों से आज और मुस्तकबिल के लिए बावर करवा रहा था। इतरत ने नफी में सर हिलाया। इसका मतलब तो हर किसी ये ना था, आप मेरा मान तोड़ रहे हैं। इतरत ने हदाद की हल्की बेयर्ड वाले मखरूर मर्दाना चेहरे पर हाथ रखते कहा। तुम मेरा मान तोड़ चुकी हो। तुमने ये कहर अपने लिए खुद चुना है, अब शिकायत कैसी? और अब अगर अब तुम्हारी आवाज निकली तो यकीन मानो, तुम्हारी रूह निकलने तक तुम्हें मेरी कुर्बत में रहना पड़ेगा। हदाद ने सख्त लहजे में कहा। इतरत की जबान पर जैसे कुफर लगा। वो सहमी हुई निगाहों से लैंप की रोशनी में हदाद की नजरों को इल्तिजा भरी नजरों से देखने लगी। हदाद का गुस्सा मजीद बढ़ने लगा। वो 5 साल से इस कहर से इज्जत को बचाना चाहता था, इसीलिए उसे खुद से दूर किया। वो चाहकर भी इससे नफरत नहीं कर पा रहा था, मगर इसकी खामोशी हदाद को गुस्से से मजीद पागल कर रही थी, और आज इद्दत की नजदीकी ने इस गुस्से को मजीद हवा दी, और कहर बनाने का काम इसकी खामोशी ने कर दिया। इतरत की हालत अबतर होने लगी, दोपहर से कुछ ना खाने और पैरों से खून निकलने की वजह से। इतरत को कमजोरी पहले ही महसूस हो रही थी, और अब हदाद के गुस्से और नफरत को सहते इसके सर और जिस्म में मजीद दर्द की टीस से इतरत की हालत मजीद खराब कर गई। हदाद आगे बढ़ता कुछ करता कि इतरत की सिसकियां दम तोड़ गई। हदाद इतरत के चेहरे को देखने लगा।
जो होशो हवास से बेगानगी तकिए पर गर्दन ढाई पड़ी थी। हदाद की जान हलक में फंसी, रूह में तकलीफ की लहर उठी। इतरत इतरत। हदाद ने इतरत के चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरते थपथपाया। इतरत की सांसें मध्यम चल रही थी, हदाद की सांसें रुकने लगी। साइड टेबल से पानी का जग उठाए हदाद ने इतरत के चेहरे पर फवार की, मगर इतरत को जरा होश न आया। हदाद की आंखों में तकलीफ उतरी। जग वापस रखते हनूज बैठे, हदाद ने अपना मोबाइल उठाया। इतरत मेरी जान, हदाद ने लाइट्स ऑन की। इतरत के माथे पर लप रखते उसे अपने सीने में भींचा। मोबाइल कान से लगाए हदाद ने अपने खास बंदे को कॉल कर किसी लेडी डॉक्टर को हवेली में लाने का हुक्म दिया। इसके बाद हदाद ने गार्ड्स को कॉल करते अपने खास बंदे के साथ डॉक्टर को आने का बताते। इंटरकॉम पर दाईजान को कॉल की, जिन्हें हवेली से अंदर डॉक्टर के साथ रूम में आने का कहते। वो अपना फोन रख चुका था। हदाद इतरत का हनूज अपने सीने में भींचे हुए था। इतरत के बालों पर लप रखते ये हदाद कुछ देर पहले अपनी बीवी पर कहर बरसाने वाले हदाद से खासा मुख्तलिफ मालूम होता था। इतरत की हालत देखते हदाद को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। गहरी रात के साए हर सू फैल रहे थे। ये मंजर था एक फार्म हाउस का, जिसकी हदूद से बाहर हो रहे शोर गुल की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। बाहर खड़े गार्ड्स गर्दन अकड़ाए अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। इन गार्ड्स की नफरी अंदर खास शख्सियात की पेशगोई कर रही थी। सफेद संगे मरमर से बना फर्श फार्म हाउस के लाउंज की स्टेज लाइट्स की रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ था। वहां कुछ नौजवान लड़कियों के साथ डांस करने में मसरूफ थे, तो कुछ के हाथ में होश उड़ा देने वाला मशरूब था। लड़कियों के बदन पर कपड़े इसी तरह के थे कि इनसे नाजुकी साफ जाहिर हो रही थी। लड़कियां लड़कों का साथ देती, इनके हमकदम डांस करने में मसरूफ थी। वो मशरूब वहां लड़कियों के हाथों में भी मौजूद था। वहां मौजूद नौजवान और आधी बरहाना लड़कियां इस मंजर को एंजॉय कर रहे थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहटें थी, तो वहीं जरा फासले पर डबल सोफे पर बराजमान शख्स की काली आंखों में गुस्सा, गजब और नफरत थी। वो भी वहां मौजूद सब पर नजरें जमाए हुए था, मगर वो इस जगह का आदी था। वो इस माहौल में हमेशा खुश रहता था, मगर आज इसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था, जैसे वो यहाँ आज अपने इश्तियाल पर काबू रखने के लिए ही आया था। इसके हाथ में भी शीशे का गिलास था, जिसका निचला सिरा मशरूब से गीला था। वो शख्स गिलास को एक झटके में खाली करता मेज पर रख गया। क्या राज बहुत ज्यादा पी ली है तूने, अब बस कर। इस सोफे के साथ सिंगल सोफे पर बैठे शख्स ने इससे कहा, सलमान तू मेरा दोस्त है, दोस्त बनकर है, बाप बनने की जरूरत नहीं। वो शख्स अपनी काली सुर्खी छाई आंखों से उसे देखता एक एक लफ्ज चबा कर बोला। सलमान ने एक लंबी सांस खींची। मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा था। सलमान ने वजाहत की। अब तू मेरी माँ बनने की कोशिश कर रहा है। काली आंखों में अपना कबारी छाई। सलमान ने रुख दूसरी तरफ किया। ये शख्स इसका दोस्त जो हमेशा अपनी मनमानी करता है, तो मैं क्यों उससे दिमाग खपा रहा हूँ। सलमान ने जल कर सोचा। सही सोच रहा, अमल भी कर लेना आइंदा इस बात पर। काली आंखों ने इस्तेहज़ाई अंदाज में सलमान को देखते कहा। सलमान ने रुख वापस अपने बचपन के दोस्त की तरफ करते किंग अखियों से उसे देखा। मुझे तेरा बाप बनने का शौक नहीं, समझा। सलमान के माथे पर बल पड़े। वो जानता था ये शख्स सहन पढ़ने में माहिर है। तो बन भी नहीं सकता, काली आंखों वाले ने जताया। बनना भी नहीं चाहता, तेरी जैसी औलाद से अच्छा है मैं बाप ही ना बनूं। सलमान ने भी दो बदो कहा। आमीन। काली आंखों वाले ने सरस बात में हिलाते इस्तफसार किया। सलमान को सदमा हुआ। तो मुझे ना मर्द होने की बदुआ दे रहा है, सलमान ने अपनी जगह से उठते तैश में कहा, और ब्लैक एंड वाइट चेक शर्ट के कफ को ऊपर फोल्ड करते जैसे शख्स पर झपटने की तैयारी करने लगा। काली आंखों वाले ने एक आईब्रो रेस की। आईब्रो रेस करते उस शख्स की पेशानी की साइड पर कट के निशान के दो टुकड़े हुए। काली आंखों वाले ने अपने सफेद हाथों से, जिन पर भूरे मर्दाना बाल थे, अपनी काली शर्ट के बटन खोले और इस शख्स ने अपना सीना आजाद किया और शर्ट सामने टेबल पर फेंकी। सलमान उसे एक नजर देखता खौफ से पसीने में शराबोर हुआ। फूले हुए मसल्स, जिनके वेन्स और बॉडी कटाव से बेहतरीन बॉडी बिल्डर का खिताब दे रहे थे, तो चौड़ा सीना और सिक्स पैक्स इस शख्स की बॉडी को चार चांद लगा रहे थे। भूरे ब्राउन बाल माथे पर बिखरे थे। दफातन इस शख्स ने गर्दन दाएं बाएं घुमाते अपना कसरती मर्दाना हाथ सोफे की पुष्ट पर फैलाया और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में फेरते माथे से बाल पीछे की और सोफे की पुष्ट से टेक लगाए एक टांग पर दूसरी टांग का तलवा फोर की शेप में बनाए सलमान को देखने लगा। लैप पर रखा हिलता पाँव ब्लैक बोनेट में अब भी ब्लैक बोन्ट में अब भी हरकत में था। तो अगर मेरा दोस्त ना होता तो बताता मैं तुझे, सलमान ने धूप निकलते कहा। ये सिर्फ अपने दोस्त के सामने हार न मानने के लिए कहा गया जुमला था। सलमान खुद अच्छी बॉडी का मालिक, रेगुलर जिम करता था, मगर ये दाऊद खानदान के मर्द पता नहीं किस आटे की रोटी खाते थे कि के सारे ही ऐसे थे जैसे देव। सलमान की तो इसका दोस्त 2 मिनट में चटनी बना देता। ओह सीरियसली। इस शख्स ने जैसे सलमान के खौफ को भांपते ना भी होंठों को गोल कर दे सलमान का मजाक उड़ाया। तो शुक्र मना यासिर शाजिम दाऊद का दोस्त है, वरना जिस टोन में तूने मुझसे बात की है, तेरे टुकड़े में अपने पालतू कुत्ते के पेट की जीनत बनाता। यासिर ने जताती नजरों से सलमान को देखते कहा। सलमान ने मुंह बनाए वापस अपने निशिस्त का रुख किया।
डार्लिंग, तुम आज बहुत दिनों बाद मुझसे मिले। यू डोंट मिस मी। एक लड़की यासिर के करीब आती, एक हाथ यासिर के बाजू पर, दूसरे से यासिर के सीने पर अपनी मखरूती उंगलियां ट्रेस करती अदा से बोली। यासिर ने एक गहरी और बेबाक नजर शिफा पर डाले, अपना पैर सीधा करते शिफा की कमर में हाथ डाले, उसे अपने लैप पर बिठाया। यासिर की नजरों को अपने वजूद पर जमा देखते शिफा खिलखिला दी। सलमान ने यासिर के करीब शिफा को देखते रुख फेरा, और लड़की यासिर की मोहब्बत में दीवानी थी। अमीर खानदान की लिबरल बिगड़ी बेटी थी शिफा। एक छोटी छोटी रेड स्कर्ट और स्लीवलेस शर्ट जेब तन किए हुए थे। फिटिंग इस कदर थी कि इसका वजूद साफ आया हो रहा था। सफेद मॉडल जैसी बरहना टांगे किसी को भी उसे गंदी नजरों से देखने के लिए मजबूर कर सकती थी। रेड हील में मुकीद पैर वो किसी भी मर्द के जब्त को आजमा सकती थी। गोल्डन बाल स्टेप्स पर कटे, कंधों पर बिखरे थे रेड लिपस्टिक में सजे होंठ, मेकअप क्या किया चेहरा, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी ग्रेश आंखें, वो बेतहाशा खूबसूरत। यासिर का मानना था इसके आसपास मौजूद सबसे खूबसूरत चीज इसके पास होनी चाहिए। इसने शिफा उसके पास थी क्योंकि यासिर जैसे भला के हैंडसम लड़के पर तो शिफा मर मिटी थी। कौन है इस हैंडसम कामयाब शख्स को ना पाना चाहेगा, जिसका सोए सोए लड़कियों के दिलों में कहराम मचा देता था, जिसकी हसरत हर लड़की के दिल में थी। शिफा इस बात पर तो इतराती थी कि यासिर शाजिम दाऊद की पसंद थी, वो जिसने लड़कियों को अपना दीवाना बनाया हुआ था। वो यूनी में यासिर के साथ ही पढ़ती थी। लंदन यूनिवर्सिटी में यासिर और उसकी मुलाकात हुई थी, और मुलाकात शिफा के लिए मोहब्बत थी। मगर यासिर इसकी खूबसूरती का असीर हुआ। यासिर ने उसे ज्यादा खूबसूरत लड़की जिंदगी में नहीं देखी थी, जबकि शिफा ने तो यासिर जैसा वजी हैंडसम मर्द पहली दफा ही देखा था। वो दोनों 7 सालों से साथ हैं, दाऊद फैमिली और दुनिया के सामने नहीं, बस एक दूसरे के रूबरू उस बात से। सिर्फ यासिर का बचपन का दोस्त ही वाकिफ था। ये फार्म हाउस यासिर का था शिफा की बर्थडे और अक्सर औकात पार्टीज में, जिनमें वो अपने खास मेहमानों और उनकी गर्लफ्रेंड्स को हिम्मत करता था। वो यही मिला करते थे क्योंकि एक दुनिया यासिर दाऊद के हर अमल पर नजर रखे होती थी। वो पॉलिटिशियन था, उसे दुनिया की नजरों से अपनी जातियात को महफूज जो रखना था, या यूं कहें अपनी काली जातियात को। मैं किसी को मिस नहीं करता, यासिर ने अपनी उंगलियां शिफा के बरहना बाजू पर फेरते कहा। शिफा की आंखों में तकलीफ उभरी, जिसे वो जल्द ही काबू कर गए। वो मगरूर शहजादा ऐसा ही था, उसे दिल रखने नहीं आते थे। जबकि सलमान वहां से उठ गया। मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया डार्लिंग, और मेरी बर्थडे भी भूल गए तुम। मैंने खुद याद दिलाया तुम्हें, कोई तोहफा भी नहीं लाए मेरे लिए। शिफा ने शिकवा किया। मैं याद करने वाली चीजें याद रखता हूँ बेबी, तुम्हें याद रखता हूँ, और याद करवाया तुमने, अच्छा किया। देखो तुम्हारे लिए पार्टी रखी और गिफ्ट, तुम बताओ क्या चाहिए तुम, यासिर कहता शिफा की कमर में हाथ डालता उसे अपने बेहद करीब कर गया। मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए, मैंने पसंद किया हुआ है। तुम्हें बस पेमेंट करनी है। शिफा ने यासिर की काली आंखों में खुमारी भांपते देख मौके पर वार किया। वो अमीर खानदान से थी, मगर वो दाऊद खानदान की दौलत के चौथा हिस्सा जितनी भी अमीर न थी। ये कहना दुरुस्त होगा कि उसे यासिर वजूद, नाम और दौलत से मोहब्बत थी। ये बात यासिर भी जानता था, और अपने लौटाए का हिसाब सूद समेत वसूल कर लिया करता था। यासिर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, सरस बात में हिलाया, मतलब साफ था, शिफा को जो चाहिए था वो उसे मिल जाएगा। मुझे और भी कुछ चाहिए, शिफा ने यासिर के मसल्स पर हाथ फेरते कहा। यासिर मजीद घेरा, मुस्कुराया। शफा खिलखिला दी। आई वॉन्ट टू स्पेंड टुनाइट विद यू डार्लिंग। शिफा ने यासिर की गर्दन में बाहें डाले कहा। यासिर के जिस्म में स्पार्क हुआ। वाई नॉट बेब। यासिर ने कहते ही शिफा को बाहों में भरे फार्म हाउस के यासिर के आलीशान रूम की तरफ कदम बढ़ाया। सलमान इन दोनों को देखते नफी में सर हिला। अब उसे सुबह तक यासिर के इस चुड़ैल को आज़ाद करने तक वेट करना था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इशराक, तुम मेरी जिंदगी में अंधेरे को दूर करने वाली रोशनी हो। मैं मर तो सकता हूँ, मगर तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमने मुझे अपने इश्क में मुब्तला कर दिया। तुम्हारा पर्दा, तुम्हारी दीन से रुखबत मुझे तुम्हारा असीर कर रही है। तुम्हारा ये पुरनूर चेहरा मुझे अपनी खुशकिस्मती का एहसास दिलाता है। सियाह आंखों वाला शख्स, वाइट शलवार सूट में मलबूस, कंधे पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल ओढ़े, सफेद शरारे कुर्ती में मलबूस, सर पर हिजाब डाले, कंधे पर लाल दुल्हनों वाली चादर ओढ़े, मुकम्मल अपने वजूद को छुपाती मेकअप से पाक चेहरे वाली सुनहरी आंखों में देखते कह रहा था। वो लड़की सरापे हुस्न थे। इसका चेहरा उसे किसी परिस्तान की शहजादी का खताब दे रहा था। काली घनी मुड़ी हुई पलकें, गुलाबी याकूती होंठ, भरे भरे गुलाबी गाल, छोटी सी नाक जिसमें रिंग शेप की नोज पिन पहनी हुई थी। वो इसके वजूद पर पहनी वाहिद ज्वेलरी थी। उसके हाथ पूरे मर्दाना बालों वाले सफेद हाथों में कैद थे। वो लड़की मुस्कुरा रही थी, नजरें शर्म से झुक चुकी थी। वो मर्द उसे पहली दफा बिना नकाब के देख रहा था। पहली दफा इसकी आंखें किसी लड़की को इतनी मोहब्बत से देख रही थी। एकदम वो शख्स की कमर पर हाथ डाले उसे अपने करीब कर गया। शर्म से झुकी पलकें हैरत ज़दा उठी। इस शख्स की उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करते सुनहरी आंखों वाली शहजादी को गलत होने का अंदेशा हुआ। दफातन वो सी आंखों वाला, देखने में बेहद हैंडसम मर्द कहका लगा उठा। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, मुझे, है ना? इशराक आजम कफीर, तुमने यासिर शाजिम दाऊद को रिजेक्ट किया था। वो शख्स कोई और नहीं, सी आंखों वाला दाऊद खानदान का दूसरा शहजादा था, यासिर शाजिम दाऊद।
اور وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کفیر خاندان کی دوسری شہزادی تھی، اشراق اعظم کفیر۔ یاسر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے اپنی پیشانی پر بنے کٹ پر دونوں ہاتھ کی انگلی مسل رہا تھا۔ اشراق کا وجود سناٹوں کی زد میں آیا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا اور تمہیں لگا میں تمہارے لیے ایسے محبت بھرے الفاظ ادا کروں گا۔ یاسر اشراق کا جبڑا پکڑتے اس کے منہ پر خرایا اشراق اشارہ اپنے پہلے محبت بھرے جملے کی طرف۔ آپ یہ کیا کریں؟ اشراق نے ڈوبتے دل کے ساتھ لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ سنہری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اب سچ کہہ رہا ہوں بیبی، 1 سال سے میری زبان سچ کہنے کو تو بےتاب۔ یاسر اشراق کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا مچلتے بولا۔ کیسا سچ؟ اشراق کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر انمول ہوئے۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا یہ کہہ کر کہ تم ایک شراب پینے والے سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی، ایک ایسے انسان سے جو نماز اور قرآن سے غافل ہے، رائٹ؟ یاسر نے کہا اور جھٹکے سے اشراق کو خود سے دور اچھوت کی طرح پھینکا۔ اشراق پیچھے رکھے صوفے پر جا گری، کمر میں درد کی ایک لہر اٹھی، مگر وہ درد کچھ نہ تھا اس تکلیف کے آگے جو اشراق کو یاسر کے الفاظوں سے بے جان کر رہے تھے۔ میں نے 1 سال لگایا تمہیں حاصل کرنے، ایک شریف انسان کی طرح تمہاری ہمسفر کی شرطوں پر پورا کرنے کے لیے، اور دیکھو آج تمہیں حاصل کر ہی لیا۔ یاسر نے اشراق کے قریب صوفے پر ایک ٹانگ رکھے چھکر کہا۔ اشراق نے سانسیں روکی، آنکھوں میں بھی یقینی تھی۔ اور پتہ ہے کیوں حاصل کیا تمہیں؟ یاسر نے آئی برو ریز کرتے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ تاکہ تمہیں حاصل کر کے اس طرح چھوڑوں کہ تمہیں کوئی دوبارہ حاصل نہ کر پائے۔ آج میں نے تمہیں اپنا نام دیا ہے مگر اپنی زندگی میں جگہ کبھی نہیں دوں گا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، یو بلڈی وومن، مجھے یاسر شاہزم داؤد کو۔ آج میں تمہیں نکاح کر کے ریجیکٹ کرتا ہوں۔ یاسر نے پہلے اشراق کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے سرگوشی سے کہا، پھر ایک دم وہ اشراق کے حجاب میں قید بال پکڑتا اشراق کے چہرے پر دھاڑا اور جھٹکے سے اشراق کو چھوڑا۔ اشراق کا سر صوفے کی ڈیزائن لکڑی سے جا ٹکرایا۔ مجھے تم سے شروع دن سے نفرت نہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے داغ دیا، دیکھو یہ نشان تم نے دیا مجھے۔ یاسر نے اپنی پیشانی پر لگے کٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کالی آنکھیں اشتعال سے لال ہوئیں، سنہری آنکھوں میں بھی یقینی چھائی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، آپ میرا نقاب اتارے، اس لیے میں نے آپ کو دھکا دیا۔ اشراق نے سسکتے ہوئے وضاحت کی، وہ 12 سال کی تھی جب سے ہی اپنی دادی سے پردے کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات لیتے۔ 7 سال کی عمر سے نقاب کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ حداد سے بھی پردہ کرتی تھی، اور 12 سال کی عمر میں 16 سالہ یاسر جو کہ لندن میں ہی رہتا تھا، پاکستان آتے اشراق کے نقاب پر پہلے مذاق اڑاتا رہا۔ وہ لوگ کفیر تھے، فیملی ویلی ہمیشہ اپنا گھر سمجھتے آئے تھے، آیا جایا کرتے تھے، وجہ ان کے بڑوں کے آپس میں خوشگوار تعلقات تھے اور بچوں کی دوستیاں۔ پھر ایک دن یاسر نے اشراق کے چہرے سے نقاب اتارنے لگا، جس کی کوشش ناکام کرتے اشراق نے اسے دھکا دیا تھا۔ یاسر اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتا پیچھے ٹوٹے ہوئے گملے سے جا ٹکرا۔ یاسر کی پیشانی پر وہ نشان اشراق اعظم کفیر کے نقاب کی وجہ سے بنا تھا۔ یاسر ہمیشہ سے حسن پرست تھا، اسے اشراق کی حرکت گزری۔ 3 دن ہسپتال گزارتے ہوئے بے انتہا نفرت اشراق کے لیے دل میں سمائے لوٹا تھا، اور اس پر سونے پہ سہاگا 6 سال بعد ثاقب داؤد کے یاسر کے شراب نوشی اور دین سے دوری کی باتیں سنتے۔ وہ یاسر کا رشتہ مسترد کر چکی تھی، وہ 5 وقت نماز کی پابند، دنیا سے زیادہ دین کے قریب لڑکی تھی۔ اسے اپنا ہمسفر بھی دین کے راستے پر عمل کرنے والا چاہیے، وہ تہجد میں نیک ہمسفر کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ پھر یکدم یاسر کے لیے سب اچھے الفاظ نکالنے لگے، اس کی نمازوں کی پابندیوں کے بارے میں چرچے سننے کو ملتے، سبھی کہتے کہ ایک بھٹکے ہوئے اللہ شخص کو اللہ نے راہ راہ دکھائی ہے۔ شاہد کفیر کے دوبارہ اشراق کو سمجھانے پر وہ اس رشتے کے لیے مان گئی تھی، اور آج اس کا نکاح ہوا تھا یاسر کے ساتھ، اور وہ اس وقت کفیر حویلی کے بیک سائڈ ہال میں کھڑے تھے، ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور وجود نہ تھا۔ اشراق کی بات سنتے یاسر کے وجود میں چونٹیاں دوڑنے لگی، جسم میں شرارے پھوٹے۔ نقاب ہی تھا، کوئی قیمتی زیور نہیں دیکھ رہا تھا تمہارا، اور اس بدصورت چہرے کو محفوظ رکھ رہی تھی۔ نہیں شاید چھپا رہی تھی، اچھی بات ہے چھپاؤ، ویسے بھی دیکھنے کے قابل نہیں یہ چہرہ اور یہ تمہارا وجود۔ یاسر نے پھر اشراق کا چپڑا بھیجتے دھاڑتے کہا۔ اشراق کی جان ہوا ہوئی، پل پل آرزوں پر موتی گرتے بے مول ہونے لگے، اس کے حسن کی تعریف اس کی سہیلیاں کرتے نہیں تھکتی، اس کا پور نور چہرہ دیکھے بنا شاہد کفیر کا دن نہیں گزرتا تھا، اس کا بات اپنی بیٹی عقیدت و رحمت والے چہرے کی نظر اتارتے نہیں تھکتا تھا۔ اماں چچی حضور رات سونے سے پہلے اس کی نظر اتارتی تھی، اور نظر لگ جانے کی حد تک حسین لڑکی تھی، جیسے 2 پل میں یہ شخص بدصورت کہہ گیا، میری حیا میرا انمول زیور۔ اشراق ایس و غضب سے اس دیو کے شکنجے میں ہمت جمع کرتی بولی، حیا زیور مائی فٹ، یہ سب ڈھونگ ڈھکوسلا ہے تمہارا سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، بڑی کوئی نیک پروین ہو تم۔ مجھے ریجیکٹ کیا تھا، اب پوری زندگی فرشتوں کی لعنت سمیٹتی رہنا، شوہر کو ناراض کرتے ہوئے، کیونکہ یاسر شاذم داؤد اب کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اشراق بی بی، یاسر بولا۔ منظر دل لانے لگے، اب یاسر حنان کا گریبان پکڑے ہوئے تھا اور وہ اس پر چیخ رہا تھا، حنان ہکا بکا بس خاموش تھا۔ جویریہ خود کے ابتر وجود کے گرد یاسر کی چادر لپیٹے ہوئی تھی، اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ ایک دم یاسر نے گن لوڈ کرتے حنان کے سینے پر تانی۔ ثاقب داؤد یاسر کو روک رہے تھے، زبان یاسر کے سم پڑ رہا تھا۔ اشراق دیوار کے ساتھ کھڑی تھی،
हदाद को शाहिद कफीर ने जकड़ा हुआ था। यासिर ने निशाना बांधा और गोली की आवाज गूंजी। भाई इशराक रात के अंधेरे में बेड से उठ बैठी। वो एक ख्वाब था मगर वो हकीकत थी। इशराक के आरे सब भी गिरे थी। हकीकत इसके ख्वाब में आते सोते वक्त भी सुकून नहीं लेने देती थी। इशराक ने लैम्प की रोशनी कमरे में फैलाते अपने दोनों हाथ मुंह पर फेरते आरसू को साफ किया। अपने काले बाल पूंछ से समेटते नसरीन लैम्प की रोशनी में खड़ी पड़ गई। तहज्जुद का वक्त हो चुका था। तकिए के पास रखे दुपट्टे को खुद पर ढांपते उसने अपने पैरों से कंबल हटाया। एक पैर हरकत करते साइड पर हुआ था तो दूसरा साकित था। इशराक ने इस पैर को अपने दोनों हाथों में थामते बेड से नीचे लटकाया। लब बेबस थे, आंखें फिर नम हुई। साइड टेबल के पास रखी बैसाखी को पकड़ते बाएं बाजू के नीचे बैसाखी को जमाया। ख्वाब में देखती हकीकत इसके बाएं पैर को साकित कर गई थी। हनान को छूती गोली इशराक ने अपने ऊपर ली थी, जिसे चलाने वाला उसका शौहर यासिर था। सुबान के बर वक्त यासिर का हाथ नीचे खींचने पर वो गोली अशराक के पैर में पेवस्त हुई थी, वरना हनान के बजाय अशराक के दिल को छूती। वो गोली कफीर खानदान की शहजादी की कहानी 5 साल पहले ही खत्म कर देती। इशराक वॉशरूम तक जाती फ्रेश होती, इसी बैसाखी के सहारे वजू करती। अब कमरे में अल्लाह के हुजूर हाजिरी लगवा रही थी। वो अपने रब के आगे इबादत करने के साथ नमाज में अदा होने वाली हर पाक लफ्ज के साथ अपनी रूह ही नहीं, अपना दिल भी ताज़ा कर रही थी। अपने आंसुओं से दिल की तकलीफ मिटा रही थी। इसका लरसता बदन, सफेद चेहरे पर छाई सुर्खी, सुनहरी आंखों के पपूटों की गुलाबी सूजन उसे अपने रब के हुजूर मोतबर करे। दुआ के लिए हाथ उठाते इशराक ने अपने खाली हाथों को देखते अपने रब को पुकारा था। या अल्लाह, मेरे भाई के नाम पर लगा दाग मिटा दे। तू रहमान है, रहीम है, मेरे भाई पर रहम फरमा। इसकी आजमाइश को खत्म कर दे मेरे परवरदिगार। मैं तेरी कमजोर बंदी तेरे सामने अपने खाली हाथ फैलाए अपने भाई के लिए इज्जत और खुशियां मांगती हूँ। या अल्लाह, तू मेरे दिल को सुकून अता कर दे। मैं तेरी रजा में राजी हूँ। वो हनान की बहन नहीं, हनान के मुताबिक इसकी माँ का दूसरा रूप थी, जो हमेशा सबके बारे में सोचती थी। वो कफीर खानदान की मासूम दिल शहजादी थी। इसकी नेक बख्ती पर इसके बाप, दादा, चचा, भाइयों को नाज था। वो पैदा ही जैसे पाक और दुनिया के गलाजा से दूर रहने के लिए हुई थी। अपनी तालीम मुकम्मल करते भी इसने कभी पर्दे को तर्क नहीं किया था। और पर्दा ही नहीं, इशराक मासूम दिल की मालिक बहुत सोबर लड़की थी, जो अदब और एहतराम का दामन कभी नहीं छोड़ती थी। वो हनान की परछाई थी और वो दोनों बहन भाई अपने दादा और दादी के, जिनकी नेक बख्ती की दुनिया गीत गाती थी। वो इन नेक बख्त बहन भाइयों की जिंदगी में अल्लाह ने बेरहम सफाक बहन भाइयों को लिखा था। इनकी जिंदगी कैसा रुख लेने वाली थी कोई नहीं जानता था। डॉक्टर इतरत का चेकअप करते जा चुकी थी। इतरत की कमजोरी की वजह से तबीयत खराब हुई थी, जबकि इतरत के पैरों पर छोटे छोटे कांच के टुकड़ों का जख्म हदाद को देख चुका था। वो जानता था ये कांच कब और कैसे चुभे होंगे। डॉक्टर के जाते ही दाई जान ने इतरत के खाना न खाने वाली बात हदाद को फिक्रमंदी से बताई थी। हदाद को इतरत पर अब ज्यादा गुस्सा आने लगा। क्या जरूरत थी कांच पर कदम रखने की? अंधी थी, नजर नहीं आ रहा था, या दाऊद खानदान की जली तस्वीर के गम में पागल हो गई थी। हदाद सोचता ही किलस कर रह गया था। और खाना खाने में मौत आ रही थी इस कमअकल औरत को। हदाद ने सुर्खी छाए चेहरे से सोचा। दाईजान हदाद के सुर्ख होते चेहरे से बेहोश कंबल ओढ़े इतरत को घूरता पाकर घबराई थी। वो वजाहत करने लगी थी कि बहू बेगम ने किचन का काम दुल्हन बेगम के सुपर्द किया था और वो दिन भर इसमें ही मसरूफ रही। दाईजान की बात सुनते हदाद ने लब भींचे थे। दाईजान को खाना लाने का कहता हदाद इतरत को एक नजर देखता शावर लेने जा चुका था। डॉक्टर ने इंजेक्शन देते कुछ ही देर में इतरत के होश में आने के इम्कान बताए थे। शावर लेता हदाद ग्रे ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। दाईजान खाना रखती जा चुकी थी। वो बेड पर बैठा कई लम्हे इतरत को यूं ही देखता रहा। वो किस कदर खूबसूरत थी कि तबीयत खराब होने के बावजूद इसे नफरत का दावा करने वाले के दिल को बुरी तरह धड़का रही थी। हदाद का दिल चाहा वो पल में सबके बंधन तोड़कर अपनी बीवी के होश अपने अंदाज में ठिकाने पर लाए। हदाद ने अपनी सोच पर खुद को झड़कते सर झटका। इतरत की बल्कि लर्ज की वो होश में आने की सही कर रही थी। हदाद ने देखते ही झुकते बेख्तियारी में इसके सफेद छोटे से माथे को शिद्दत से चूमा। इतरत ने हदाद की बेहद के चुबन से कसमसाते हुए आंखें खोली। इतरत की आंखें खोलने पर हदाद फौरन अपनी बेख्तियारी पर लानत भेजता स्पॉट चेहरा ले पीछे हुआ। इतरत हदाद को अपने करीब देखती फौरन एक हिचकी भरती पीछे को खिसकने की कोशिश करने लगी। होश में आंखों में सितमगर को देखते पर खौफ और नमी खुली थी, मगर हदाद ने इतरत की आंखों में खौफ देखते लब भीजते इतरत को कंधे से थामते तकिए बेड ग्राउंड से सेट करते सहारे से बिठाया था। हदाद की बाहों के हल्के में इतरत ने अपनी सांसें तक रोक ली। हदाद ने महसूस किया था वो जब भी सहम जाती या खौफ में होती सांसें रोक लेती थी। हदाद ने खाने की ट्रे इतरत के पास जगह बनाते रखी और हुक्म दिया खाना खाओ। वो शख्स ऐसा ही था, किसी मर्दे के साथ भी नरमी नहीं दिखा सकता था।
इतरत ने एक नज़र ट्रे को देखते सहमते हुए हदाद को देखा था, जो बहुत गौर से इतरत की हर हरकत को मुलाहिजा फरमा रहा था। हदाद के दिल में न जाने क्या आई कि वो अब इतरत पर गुस्सा करने के बजाय इसके खुश कांपते लबों से पानी का ग्लास लगा के इतरत ने आंखें मीचे जहर की मानिंद दो घूंट पीते गला नम किया। हदाद इतरत के लिए निवाला बनाते इसके होंठों के करीब ले गया। इतरत ने इस जल्लादियों के नरम बर्ताव को देखते फिर एक लंबी सिसकी भरते पैरों के गिर्द बाजू लपेटते अपना चेहरा छुपाए सिसकना शुरू किया। हदाद अब सही मानों में गड़बड़ाए। अब तो उसने कोई सख्ती भी नहीं बरती थी, मगर फिर भी इतरत रो रही थी। ओहो, अब तो मैंने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें, ये आंसू क्यों बहा रही हो? हदाद का पारा पल में हाई हुआ। क्यों ही तो उसे मुकद्दस जन्ना और याजान विलन बुलाते थे। वो कभी भी अपने रोब और गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखता था। अगला बंदा चाहे इसके गुस्से से मर ही क्यों न जाए। हदाद के सख्त लहजे पर, जो कि हदाद के मुताबिक नरम था। इतरत अपनी जगह से फिर कुछ दूर उछली, सहमी नम निगाहों से कांपते वजूद के साथ इस जल्लाद को देखने लगी। हदाद के गुस्से का टेम्परेचर मजीद हाई हुआ। खाने की ट्रे साइड टेबल पर आराम से मगर असल में पटकने वाले अंदाज में रखते हदाद ने इतरत का बाजू पकड़े उसे अपनी सिमत खींचा। इतरत को हदाद की सख्त उंगलियों से अपना बाजू टूटता महसूस हो। इतरत ने फिर सांस रोक ली और यह हरकत हदाद को मजीद आग लगा गई। वो कब से इस दिन पे नाजुक से अपने मिजाज के बरक्स नरमी बरत रहा था, मगर एक ही मोहतरमा थी कि गमों की पहाड़ी बने इस जल्लाद को मजीद सीख पाकर रहे थे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हदाद इतरत को अपने करीब करता धाड़ा। इतरत का कांपता वजूद मजीद रफ्तार इख्तियार करके आंखें ख्वाब से बंद थी, हिचकियां भरते इतरत की नाजुक गर्दन की बनती सुराही हदाद को मस्मराइज कर गई। ये नाजुक वजूद हदाद के जब्त को आजमा रहा था। वो 30 साल की उम्र तक कई लड़कियों की नजरों से गुजरा था, मगर इसकी नजर किसी एक पर भी ना रुकी थी। कोई लड़की आज तक इसकी तवज्जो का मरकज नहीं बनी थी, ना इसने किसी लड़की को ऐसा करने की इजाजत दी थी। मगर इसके सामने बैठी उम्र में 7 साल छोटी इसकी बीवी इसकी नजरों में दीवानगी पैदा कर रही थी, और वो मजबूत एहसाब का मालिक शख्स पल पल खुद को उस नाजुक वजूद पर जुल्म करने से किस किस तरह से रोक रहा था, ये वही जानता था। आपने मुझे जोर इतरत सहमी निगाहों को वाकिए हदाद की नजरों को अपने गले में मरकूज देखते टुकड़ों में अधूरी बात की। हदाद समझ चुका था वो बेड पर लाकर फेंकने की बात कर रही। इतरत का मकसद हदाद की निगाहों से बचना था। हदाद होश में आता इतरत की बात सुनता, उसे देख कर रह गया, रोते हुए खौफ में सहमते हुए। इसकी बीवी इसकी शिकायत इसी से लगा रही थी। अब तो कुछ नहीं करा, चुप हो जाओ। हदाद ने इतरत की तबीयत के पेश नजर अपनी उंगलियों के पोरों से इसके आंसू चुनते कहा। हदाद ने वापस ट्रे अपने सामने रखते अपनी बीवी को मुतवज्जा किया। इतरत के होंठों के करीब निवाला किया। इतरत ने अब बिना पलके उठाए इस दफा मुंह खोला। वो हदाद के खाना खिलाने तक सहमी हुई नजरें झुकाए खाए जा रही थी, यहाँ तक कि खाना खत्म हो, और हदाद अपनी 1.5 हड्डी की बीवी को देख कर रह गया। जब इतना खा सकती थी तो सेहत क्यों नहीं बनती थी? हदाद ने हैरत से सोचा। बिजनेस टाइकून को अपनी बीवी के खाने और सेहत पर लॉजिक लगाना बहुत मुश्किल अमर लगा। काफी देर से अपने मुंह को खाली महसूस करते इतरत ने नसें उठाए हदाद को देखा। रो से देख कम खूर ज्यादा रहा था। इतरत की नजर ट्रे पर गई तो बेसाख्ता अपना निचले लब काटने लगी। हदाद इतरत की मेडिसिन लेता इसके सर पर सवार हुआ। इतरत भी यकीनी के आलम में कुछ देर पहले अपने जलाद शौहर के रूप और अब इतनी नरमी का मवासना करती रही। हदाद के मेडिसिन सामने करने पर इतरत की जान लबों पर आई। उसी कड़वी दवाइयां हरगिज नहीं पसंद थी, और ये बात हदाद भी जानता था। इतरत ने गंदा सा मुंह बनाया। हदाद ने अपनी बीवी के खूबसूरत चेहरे को बिगड़ता देखते बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई। नहीं ले रही मेडिसिन? चलो मैं खिला देता हूँ तुम्हें। हदाद ने कहते इतरत को बेड ग्राउंड से लगाते इसके मुंह के करीब बारी बारी टैबलेट होठों पर रखी और पानी का ग्लास उसके मुंह से लगाया कि इतने में दरवाजा खुला। अस्सलाम वालेकुम अम्मा हजूर। हदाद ने माँ के सुर्ख चेहरे को देखते इतरत के करीब नामहसूस अंदाज में दुपट्टा बढ़ाया। इतरत शर्म से अनार होती फातिमा बेगम का सुर्ख चेहरा देखती फौरन सर पर अच्छे से दुपट्टा टिका दी। वालेकुम अस्सलाम, फातिमा बेगम ने बेटी को देखते जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा हजूर। इतरत ने भी फौरन बेड से नीचे उतरते अपनी खूनख्वार सास की अकीदत में सलामी पेश की। तुम्हारी बहन दाऊद हवेली में सिर्फ इसलिए यहाँ तुम्हारे कमरे में मौजूद है। मुझे नहीं पता था तुम अपनी बीवी की खूबसूरती के असीर हो, वरना मैं उसे अपनी बेटी के सबब से पहले तुम्हारे कमरे में भेज देती। फातिमा बेगम ने एक नजर इतरत के चेहरे पर शर्म हया को देखते जलकर गोया हूँ। हदाद ने माँ के लफ्जों पर लब खींचे। आखिरी बात पर कुछ कहना चाहा, मगर फातिमा बेगम हाथ हवा में बुलंद करती हदाद को खामोश करवा गई। तुम शायद हनान के साथ इनकी की गई ज्यादती माफ कर सकते हो, मेरे फरिश्ता सिर्फ बेटे पर लगी इस दाग को भूल सकते हो, मगर मैं नहीं हदाद। और तुम नाजुक कली फजर की अजान हो चुकी है। अपने शौहर की हमदर्दी और मोहब्बत समेट ली हो तो अब्बा हजूर को चाय देनी है। एक दिन का काम क्या कर लिया, डॉक्टर की नौबत आ गई तुम्हारे लिए। फातिमा बेगम हदाद पर खुराते हुए इतरत पर बरसी। इतरत ने लब भींचे सिसकी रोकी। नम नसरें चुकी थी। मैं जा रही हूँ, इतरत कहती फौरन किचन में जाने लगी।
पहले नहाओ फिर किचन में दाखिल होना। इतना सलीका नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। लेकिन तुम्हारी तो माँ ही नहीं थी, मगर मुमानी तो जिंदा थी। फातिमा बेगम के अल्फाज पर इतरत के कदम रुके। आंखों से दो आंसू टूट कर बेमोल हुए। हादाद ने इतरत की बुश को देखते फिर अपनी माँ को देखा, जो जांचती नजरों से अपने बेटे को देख रही थी। फातिमा बेगम ने जानबूझकर इसकी मरी हुई माँ और मुमानी का ताना दिया। तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो बता दो, हम तुम्हारी बीवी की शान और खानदान में की गई गुस्ताखी की माफी इसके पैर पकड़ कर मांग लेते हैं। फातिमा बेगम ने कहा, सुना नहीं क्या कहा अम्मा हजूर ने? जाओ शावर लो, और ये मेरी बीवी होने से पहले आपकी बहू है। अम्मा हुजूर, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, और ना ही अपने भाई से। गाफिल हुआ हूँ, दुश्मनी की आग आज भी मेरे दिल में कहर मचाए हुए। आप बेफिक्र हैं, हद्दाद कहता ड्रेसिंग टेबल से वॉलेट और कीज उठाता बिना इतरत को एक नजर देखे बाहर कदम बढ़ा के रुक के फातिमा बेगम बेटे की बात पर एक जताती नजर इतरत पर डालती वहां से निकले। इतरत अपने आंसू रगड़ती वॉशरूम में बंद हुई। क्या था ये शख्स? एक पल नफरत का कहर बरसाते, दूसरे पल नरमी दिखाते, तीसरे पल मोहब्बत का लफ्ज देते, चौथे पल अनजान कर गया। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।